Good morning, friends. Welcome back to the third session of income tax. Now, in the today's session, we will discuss the residential status of various persons, residential status of individual, HUF, AOP, BOI, partnership firm, company, local authority, artificial juridical person. Yes, for all persons we will have to determine the residential status. For that, before starting the topic, I have three clarifications. Clarification number one: why residential status is required? Residential status under income tax law is required because tax incidence is completely based on residential status, meaning that if you are Indian resident, normally in a layman language, if you are an Indian resident, then Indian income as well as foreign income will be taxable in your hand. If you are non-resident in India, then only Indian income will be taxable in India. That is the main reason we are going to determine the residential status, and later on we will discuss it in detail in the chapter of incidence of tax. But this is the background. Yes, for Indian resident, entire global income will be taxable, Indian income as well as foreign income. For non-resident in India, only Indian income will be taxable, foreign income will not be taxable here. Yes. Number two, so that is the purpose why we are determining the residential status. Question number two: residential status is determined of a person. So we have 7 persons in the Income Tax Act. So for 7 persons, we will determine the residential status. For each and every person, we will determine the residential status. Clarification number 3: every year, you will have to determine the residential status of a particular person. For example, Mr. X. So for previous year 1920, for example, suppose Mr. X residential status is he is resident in India for 1920. For 2021, previous year 2021, for next year, हो सकता है कि वो आउटसाइड इंडिया ही रहा पूरा, तो वो केस में उसका स्टेटस हो सकता है कि वो NRI भी है. तो फॉर एवरी प्रीवियस ईयर you will have to determine the residential status. Residential status differs from year to year for a particular person. May change from year to year for a particular person. एक ही बंदे का residential status year to year change हो रहा है. Yes. So these are the three background clarifications before starting the residential status. Now we are going to start with the residential status of a first person. First person is an individual. In case of individual, how it is determined? In case of individual, 3 status are possible. क्या है? First of all, we will part it in 2 parts. It is resident in India and non-resident in India. Resident in India and non-resident in India, that is NRI. That is called NRI. These will be based on 2 basic conditions. We will decide whether Mr. Individual is resident in India or NRI. That will be decided based on 2 basic conditions that we will discuss later on. 2 basic conditions. If at least one basic condition is satisfied out of these 2 basic conditions, then Mr. Individual shall be treated as resident in India. If both the conditions not satisfied, he failed to satisfy none of the condition, in that case, he shall be regarded as NRI. He shall be treated as NRI. I repeat, at least one condition needs to be satisfied to become a resident in India. If you fail to satisfy both the conditions, then you shall be treated as NRI for the particular previous year. Now come to the next. If your answer is NRI, then your answer is complete. Then you need not further proceed. Your answer is complete. NRI means full and final status. If you are resident in India, then again it will be divided in 2 parts. It is ordinary resident and non-ordinary resident. Ordinary resident in India and non-ordinary resident in India. That is called, full name is resident and
ordinarily resident in India or resident but not ordinarily resident in India. तो resident का दो पार्ट बनेगा. Yes, at starting level we have divided individual in two parts. Resident in India, NRI. NRI answer clause. Resident in India उसका दो पार्ट. Resident and ordinary resident in India, and second part resident but not ordinarily resident in India. क्योंकि वो रेसिडेंट का ही पार्ट है तो दोनों केसेस में रेसिडेंट तो है ही. तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया. तो वो रेसिडेंट तो होने वाला है कंफर्म. नाउ दिस विल बी डिसाइडेड to whether he is ROR, resident and ordinary resident of India, we will call it ROR, and this is RNOR. Yes, this ROR and RNOR will be decided based on two additional conditions. Here we have additional conditions. Yes, earlier at first part we have two basic conditions, and at this level we have two additional conditions. Yes, now come to the point. What are these two basic conditions and what are these two additional conditions? Two basic conditions, it is first basic condition. Individual must be in India at least for 182 days, during current previous year. 182 days or more. That means if a Mr. Individual is in India in a particular previous year for 182 days or more during current previous year, then first condition is satisfied. Meaning that, for example, take a situation. In our examination hall, it is a previous year 1920. So for previous year 1920, we will determine the residential status of an individual. So for that, we will calculate the stay in India of Mr. X इन प्रीवियस ईयर 1920. कितने दिन वो इंडिया में था, कितने दिन आउटसाइड इंडिया था. अगर वो इंडिया में 182 डेज और मोर 1920 प्रीवियस ईयर 1920 में था, इन दैट केस फर्स्ट कंडीशन गेट सेटिस्फाइड. और आपको पता है दो बेसिक कंडीशन में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करना है टू बिकम अ रेसिडेंट. इफ फर्स्ट कंडीशन गेट सेटिस्फाइड ही बिकम्स रेसिडेंट इन इंडिया. दैट्स इट. तो आपको सेकंड कंडीशन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, बेसिक कंडीशन में फर्स्ट पार्ट ऐसा है रेसिडेंट एंड एनआरआई. वो उसके लिए वी विल हैव टू चेक एग्जामिन टू बेसिक कंडीशन. टू बेसिक कंडीशन में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन ही बिकम्स रेसिडेंट इन इंडिया. अगर दोनों सेटिस्फाई होता है तो भी वो रेसिडेंट इन इंडिया. अगर दोनों डिस्क्वालीफाई होता है, दो में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, ही शैल बी ट्रीटेड एज एनआरआई. तो नाउ कम टू द पॉइंट. तो रेसिडेंट बनने के लिए आपको एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. तो व्हाट इज फर्स्ट बेसिक कंडीशन? You must be in India for 182 days or more during current previous year. अगर एक फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, you are in India for example for 190 days during previous year 1920, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. इफ फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड यू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया. तो आपको सेकंड कंडीशन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि एटलीस्ट वन कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया. तो फर्स्ट सेटिस्फाइड हो गया, दैट्स इट. इफ फर्स्ट इज नॉट सेटिस्फाइड देन यू विल हैव टू गो फॉर सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन सेज an individual must be in India for 60 days or more during current previous year and 365 days or more during last 4 preceding previous years. I repeat, individual must be in India for 60 days during current previous year. Current previous year in our case it is 1920. 1920 में minimum कितने दिन होना चाहिए? 60 days or more. And he must have been in India for 365 days or more during last preceding 4 previous year. Preceding 4 previous year mean current year is 1920. तो preceding 4 previous year mean 1819, 1718, 1617 and 1516. This 4 previous year. यानी कि करंट प्रीवियस ईयर के आगे का 4 साल आपको लेना है. यस, करंट ईयर में कितना दिन होना चाहिए? 60 डेज और मोर. एंड आगे के 4 साल में कितने दिन होना चाहिए? 365 डेज और मोर. इफ बोथ द कंपार्टमेंट आर फुलफिल, सेकंड कंडीशन में 2 कंपार्टमेंट है. करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर. इफ बोथ द कंपार्टमेंट्स आर सेटिस्फाइड देन ओनली सेकंड कंडीशन गेट सेटिस्फाइड. बी क्लियर. अगर 2 में से एक भी कंपार्टमेंट फेल हुआ
देन सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, बिग क्लियर। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए दोनों चीज़ होनी चाहिए। टेक एन एग्जाम्पल, 1920 में आप 60 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप 70 डेज हो, गुड। एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में उसका टोटल कर लो, कितने दिन टोटल कितना हुआ, लास्ट 4 ईयर्स का स्टे कैलकुलेट कर लो। समझ लो हर एक साल में आप 100 डेज इंडिया में थे, तो 100 100 100 100, तो 4 साल का टोटल कितना है, 400। अब चेक करो, यू आर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, तो यस आई एम इन इंडिया इन करंट ईयर फॉर 70 डेज और मोर, मीन्स इट इज़ फॉर 70 डेज, तो डेफिनेटली इट इज़ मोर देन 60 डेज। एंड लास्ट 4 ईयर्स में आप 365 डेज से ज़्यादा हो, तो यस मैं 400 डेज था, तो करंट ईयर में 70 डेज था, लास्ट 4 ईयर्स में 400 डेज था। तो व्हाट कंडीशन सेज, करंट ईयर में 60 डेज और मोर, तो 60 डेज से मैं ज़्यादा हूँ डेफिनेटली। एंड लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर, तो मैं 400 हूँ, तो वो भी सेटिस्फाइड। इफ बोथ कंपार्टमेंट्स आर सेटिस्फाइड देन सेकंड कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, यस। एंड मोमेंट यू सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन यू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया, यस। मगर बोथ कंपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से है, करंट ईयर में आप 70 डेज हो तो 60 डेज सेटिस्फाइड, एंड लास्ट 4 ईयर्स में से टोटल है 300 डेज, तो नो, सेकंड कंपार्टमेंट इज नॉट फुलफिल, तो मीनिंग देयर बाय सेकंड कंडीशन इज वायलेटेड, बिकॉज इन सेकंड कंडीशन 2 कंपार्टमेंट्स आर जॉइंट विथ वर्ड एंड, मीनिंग देयर बाय दोनों कंपार्टमेंट फुलफिल है तो ही सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज सेकंड कंडीशन फेल हो गया, मीनिंग देयर बाय सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। First condition not satisfied, second condition not satisfied, in that case first basic condition not satisfied, second basic condition is not satisfied because of any reason of any compartment, then अगर दोनों कंडीशन आप फेल किया, not satisfied, then you become NRI। अगर दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ then you become resident in India, be clear। दो बेसिक कंडीशन, what is first basic condition, you must be in India for 182 days or more during current previous year। What is second basic condition, you must be in India for 60 days in current previous year, 60 days or more in current previous year, and 365 days or more in last 4 preceding previous year। दो में से एक या तो दोनों सेटिस्फाई होता है, यू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया, दोनों फेल होता है, यू बिकम्स NRI, यानी कि नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इफ यू बिकम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया योर आंसर इज क्लोज, यस। इफ यू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया देन आपको दो पार्ट अगेन करना पड़ेगा, इट इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, एंड सेकंड पार्ट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, यस। बट बिफोर गोइंग इन टू द ऑर्डिनरी स्टेटस, लेट मी क्लेरिफाई 2 एक्सेप्शन ऑफ द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन हमने 2 देखा, फर्स्ट इज 182 डेज और मोर ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, स्टे इन इंडिया, सेकंड इज 60 डेज और मोर in current previous year and 365 days or more in last 4 preceding previous year, stay in India. Now in second basic condition, first compartment 60 days, this 60 days will be replaced by 182 days in following 3 cases. I repeat, in second condition, first compartment 60 days, this 60 days will be replaced by 182 days। आपको 60 नहीं रखने का, वहाँ क्या रखने का, 182 रखने का। कौन से केसेस में, 3 केसेस में, 3 केसेस में ही वहाँ 182 रखने का, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ 60 ही रखना है, यस। तो व्हाट आर दिस 3 केसेस, केस नंबर 1, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, दिस आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन नंबर 1, व्हेन इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, इंडियन सिटीजन, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, चेक करो, जो मिस्टर एक्स जा रहा है, मिस्टर एक्स इज एन इंडियन सिटीजन, तो यस, ही लिव्स इंडिया ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, यस। फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, इफ इट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज देन यस एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल, मीनिंग देयर बाय इन सेकंड बेसिक कंडीशन, जब भी आप दोनों कंडीशन लिखो तो सेकंड बेसिक कंडीशन में फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या लिखने का, नॉट 60 डेज, क्या लिखने का, 182 डेज, दैट्स इट। I repeat, Indian citizen, you must be an Indian citizen, फॉरेनर के लिए नहीं है, इफ़ यू आर एन US citizen नॉट एप्लीकेबल। तो क्या आएगा सेकंड बेसिक कंडीशन फर्स्ट कंपार्टमेंट, तो 60 डेज आएगा, यस। हाँ, अगर इंडियन सिटीजन है तो उसके लिए ही एक्सेप्शन है, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया, इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट में केरला हाई कोर्ट ने इसमें इंटरप्रिटेशन किया है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स इट हैज़ अ वाइडर मीनिंग,
मीन्स यू कैन एम्प्लॉय योर ओन टाइम, अगर आपके खुद के टाइम एम्प्लॉय करने के लिए टू अर्न दी मनी अगर आप जा रहे हो, इट इज़ कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मीनिंग दैट आप जॉब के लिए जा रहे हो देन चलेगा, अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो चलेगा, प्रोफेशन के लिए जा रहे हो चलेगा, ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर कवर्ड इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन ओनली जॉब, बी क्लियर. तो नाउ कम टू द पॉइंट, आई रिपीट, एक्सेप्शन नंबर 1, आपको दो चीज़ याद रखने का, क्या, यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, एंड नंबर 2, यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देन 182 days will come in second condition, first compartment. What is second basic exception? What is second exception of the basic condition? Condition number 2, first compartment. उसका second exception है, if Indian citizen और person of Indian origin, दो लोग हैं, Indian citizen और person of Indian origin, हमारे मूलभूत हमारे लोग, person of Indian origin comes to India for visit purpose. तो फर्स्ट एक्सेप्शन जाने के लिए था, इंडिया छोड़ के आप जा रहे हो, एंड सेकंड एक्सेप्शन आने के लिए. हमारे लोग जो बाहर सेटल हुए हैं, यूएस में, कनाडा में, काफ़ी अक्रॉस द ग्लोब, हमारे लोग जो सेटल हुए हैं, दे आर इंडियन सिटीजन, दे आर इंडियन ओरिजिन. काफ़ी लोग इंडियन सिटीजन नहीं है मगर इंडियन ओरिजिन, मीन्स पर्सन ऑफ, यानी कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दो में से एक लोग आप होने चाहिए, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. इंडियन सिटीजन तो आपको पता है, बाय इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक आपको सिटीजनशिप मिलती है. एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं. आपका बर्थ, आपके पेरेंट्स का बर्थ और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ, इसमें से किसी का भी बर्थ अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, देन अनडिवाइडेड इंडिया, मीनिंग दैट माई इंडिया बिफोर डिवीजन ऑफ 1947, then you shall be treated as person of Indian origin. You shall be treated as person of Indian origin. तीन लोग में से कोई एक पर्सन, you, your parents और your grandparents, ये जो तीन लेवल है, तीन हायरार्की है, इसमें से किसी का भी बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, मीनिंग दे बाय इंडिया बिफोर पार्टीशन ऑफ 1947, उसकी पहले का जो पार्टीशन, मीनिंग दे बाय इट इज़ आज का इंडिया, इट इज़ पाकिस्तान लैंड, कुछ पोर्शन बांग्लादेश का, यानी कि यस दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द अनडिवाइडेड इंडिया. तो नाउ अगर इसमें आपका ये तीन चैनल में से किसी का भी बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, देन यू शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. आपका ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ वहाँ हुआ था, तो डेफिनेटली यू शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. या तो माई क्वेश्चन इज सेकंड एक्सेप्शन, कम टू द पॉइंट. सेकंड एक्सेप्शन सेज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हमारे लोग, comes to India for visit purpose. तो यहाँ दो कंपार्टमेंट है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन is coming to India for visit purpose, not for business purpose, not for profession purpose, not for employment purpose. They are coming here for visit purpose, not for settling permanently here. They are coming here for visit purpose. Visit purpose. विजिट का भी इंटरप्रिटेशन हुआ है, काफ़ी कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है. तो विजिट मीन आप यहाँ घूमने के लिए आ रहे हो और वापस चले जाने वाले, सेटल आप आउटसाइड इंडिया ही हो, दैट इज कॉल्ड विजिट. यस, यू आर नॉट कमिंग फॉर बिजनेस पर्पज, यू आर नॉट कमिंग फॉर प्रोफेशनल पर्पज, यू आर नॉट कमिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, जस्ट आप यहाँ घूमने के लिए आ रहे हो. इन दैट केस सेकंड एक्सेप्शन वुड बी एप्लीकेबल. तो आई रिपीट, क्या फर्स्ट एक्सेप्शन जाने के लिए, वहाँ क्या था, इंडियन सिटीजन था, गोइंग आउटसाइड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेकंड एक्सेप्शन क्या है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पज. एंड थर्ड एक्सेप्शन इज इफ यू आर लिविंग इंडिया, यानी कि इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ द शिप, एज अ मेंबर ऑफ क्रू, मीनिंग दैट क्रू और द शिप, मीनिंग दैट अगर जो शिप में काफ़ी लोग जॉब करते हैं, यस इंडियन शिप है तो शिप आउटसाइड इंडिया जाती है, इसमें काफ़ी लोग जॉब करते हैं अंदर, तो दे आर द इंडियन सिटीजन, मे बी द इंडियन सिटीजन. इफ़ यू आर इन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, शिप जा रही है एज अ मेंबर ऑफ क्रू, मीनिंग देर बाय आप शिप के मेंबर, अगर वो शिप में अगर आप जा रहे हो, मीन्स शिप में आप जॉब कर रहे हो, तो शिप तो आती जाती रहती है डेफिनेटली. शिप में अगर आप जा रहे हो तो वो मेंबर ऑफ द क्रू, मीन्स शिप के एम्प्लॉई को भी ये बेनिफिट दिया गया है. क्या, इन दैट केस 60 days will be replaced by 182 days. तो ये तीन केसेस में, नाउ कम टू द पॉइंट, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन. इन दिस थ्री केसेस, थ्री एक्सेप्शन, तो हम दो पार्ट करेंगे, तीन में से कोई एक एक्सेप्शन एप्लीकेबल है या नहीं है,
3 केसेस में कवर्ड है या नहीं है, 3 केसेस या तो रेस्ट ऑफ द केसेस, 2 पार्ट। 3 केसेस में से अगर कोई केस है तो सेकंड बेसिक कंडीशन में आप क्या लिखोगे, 182 डेज। अगर 3 में से कोई केस नहीं है तो सेकंड बेसिक कंडीशन में फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या लिखोगे, 60 डेज। 60 डेज दोनों कंडीशन लिख लो और बाद में चेक करो, अब लिखो। तो इन एग्जामिनेशन हॉल पहले हमको ये चेक कर लेना चाहिए, हम पहले ऑलवेज बेसिक कंडीशन लिखते हैं आंसर में। तो फर्स्ट कंडीशन तो नॉर्मल है 182 डेज। सेकंड कंडीशन में जब आप लिखो ना मस्ट बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, तब आपकी पेन रुक जानी चाहिए। क्या चेक करो, वो 3 केसेस में कवर है एक्सेप्शन में, तो क्या लिखेंगे, 182 लिखेंगे। अगर 3 केस में कवर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 60 डेज लिखेंगे। और बाद में सेकंड कंडीशन परफेक्ट ड्राफ्ट कर दो एंड बाद में उसका प्रॉपर वर्किंग किया जाए कि आप करंट ईयर में कितने दिन स्टे हो, आप लास्ट 4 ईयर्स में कितने दिन इंडिया में स्टे थे, और देन यू टेक द डिसीजन दोनों कंडीशन के बेसिस पे। यस, कि वेदर you satisfy at least one basic condition or dono condition, then you are resident in India. If you fail to satisfy both the conditions, in that case you shall be treated as non-resident in India. Now a few more clarifications are there. Clarification number 1, जब भी आप इंडिया में आ रहे हो, कंटिन्यूस स्टे इज नॉट इम्पोर्टेंट। कंटिन्यूस स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने यहाँ बोला ना 182 डेज इंडिया में होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में बोला 60 डेज या तो 365 डेज। कंटिन्यूस स्टे इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मीनिंग दैट आप इंडिया में आए 2 महीना रहे, वापस चले गए, वापस करंट ईयर में आए 2 महीना रहा, तो मीनिंग देर बाय आप टोटल काउंट कितना होगा, 4 महीना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कंटिन्यूसली आपको 182 डेज रहना या तो 60 डेज रहना, नो, पूरे प्रीवियस ईयर में काउंट करने का। जिस प्रीवियस ईयर का आप रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर का पूरा प्रीवियस ईयर कंसीडर करने का, इसमें जितने दिन आप इंडिया में थे वो देख लो। कंटिन्यूस स्टे इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लैरिफिकेशन नंबर 1। क्लैरिफिकेशन नंबर 2, कंटिन्यूस स्टे एट अ सिंगल प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया में आप आते हो तो ऐसा नहीं है गुजरात में आए हो तो गुजरात में ही रहने का, गुजरात में हो, बॉम्बे में जाते हो, बिहार में जाते हो, अलाउड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्टे इन इंडिया। एंड थर्ड क्लैरिफिकेशन, नॉर्मली 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। अगर टाइमिंग इज अवेलेबल, आपको टाइमिंग दिया है एग्जामिनेशन हॉल में, तो बेस्ड ऑन 24 आवर्स यू विल कैलकुलेट 1 डे। तो जब वो आया था गया था, वो जब आवर्स भी इन्वॉल्व होती तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितने दिन वो इंडिया में था। यस, बट जब वो आवर्स नहीं दिया, डे दिया कि इस दिन पे वो आया था, इस दिन ये गया, देन बोथ डेज, डेट ऑफ एंट्री यानी कि डेट ऑफ अराइवल and date of departure, both days shall be treated as stay in India. I repeat, date of entry and date of departure, both days shall be counted as stay in India. दोनों दिन इंडिया में था, इस तरह से आपको वर्किंग करना है। जब करंट ईयर का कैलकुलेट करते हो कितने दिन स्टे था, जब लास्ट 4 ईयर्स का कैलकुलेट करो कितने दिन स्टे था, बी क्लियर। यानी कि पूरे रेसिडेंशियल स्टेटस में दिस 3 क्लैरिफिकेशंस आर एप्लीकेबल। यस, नाउ द नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन is now we will go for the आपने अभी हमने 2 चीज़ देखा, बेसिक कंडीशन चेक किया, परफेक्ट कर लिया, उसका एक्सेप्शन भी क्लैरिफाई कर लिया। यू आर रेसिडेंट इन इंडिया और NRI इन इंडिया। NRI है, योर आंसर इज क्लॉज। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया मीनिंग देयर बाय योर आंसर इज क्लॉज कंप्लीट। रेसिडेंट हो तो बाद में 2 कंडीशन, 2 अलग पार्टीशन है, ROR resident and ordinarily resident in India, and second part is R but not R, meaning thereby RNOR, resident but not ordinarily resident in India. Now these 2 division will be decided based on 2 additional condition, 2 additional condition। वो additional condition क्या है, मैं आता हूँ। Based on these 2 additional condition will be decided whether you are ROR or RNOR. If both additional conditions are satisfied, both ऊपर क्या था बेसिक कंडीशन में, एटलीस्ट 1, यहाँ क्या है, दोनों, both. If both additional conditions are satisfied, then you become R and OR, resident and ordinary resident in India. अगर दोनों में से एक कंडीशन फेल हुआ या तो दोनों फेल हुआ, you become resident but not ordinarily resident in India. Be clear. तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होता तो ही आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हो। अगर दोनों में से एक कंडीशन वायलेट होता या तो दोनों वायलेट होता, देन यू बिकम RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। यस, तो
तो नाउ दोनों एडिशनल कंडीशन क्या है, हम एडिशनल कंडीशन में आते हैं. यस, एडिशनल कंडीशंस आर नंबर 1, you must have been in India for 730 days or more during last 7 preceding previous years. I repeat, you must have been in India during last 7 preceding previous years for 730 days or more. तो आपको लास्ट 7 ईयर्स का टोटल काउंट करना पड़ेगा. आप 730 डेज से ज़्यादा था या नहीं था. यस, लास्ट 7 ईयर्स मीन्स करंट ईयर नहीं लेने का. करंट ईयर हमारा कौन सा है, 1920. प्रीवियस ईयर 1920. तो करंट ईयर नहीं लेने का, आगे का 7 साल, लास्ट 7 ईयर्स का टोटल आपको काउंट करना है. इफ़ यू आर इन इंडिया, if you are in India for 730 days or more, then first additional condition is satisfied. Number 2, condition number 2, you must have been resident in India in at least 2 previous year out of last 10 previous years. What does it mean? You must have been resident in India. Resident in India. Resident कैसे डिसाइड होता है, बेसिक कंडीशन के बेसिस पर. You must have been resident in India in at least 2 previous year out of last 10 previous years. तो यहाँ भी करंट ईयर नहीं देखने का, लास्ट 10 ईयर देखने का. लास्ट 10 ईयर्स का स्टेटस देखो. लास्ट 10 ईयर्स में बेसिक कंडीशन अप्लाई करो, दोनों बेसिक कंडीशन अप्लाई करो हर एक साल में, और सभी साल का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड कर लो. सभी साल में चेक करो क्या यू वर रेसिडेंट और एनआरआई. बेसिक कंडीशन से तो वही पता चलता है, यू वर रेसिडेंट और एनआरआई. तो हर एक साल में आप अटेम्प्ट करो, दोनों बेसिक कंडीशन अप्लाई करो 10 साल में, और 10 साल का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड कर लो. यू वे रेसिडेंट और एनआरआई सभी में 10 में. अब एक बार चेक हो गया 10, बाद में क्या डिसीजन लेना है, सेकंड कंडीशन एग्जामिन करो, चेक करो 10 में से एटलीस्ट 2 साल में आप रेसिडेंट थे, 2 years और मोर. इफ़ यू वर रेसिडेंट इन इंडिया देन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. मगर 10 लास्ट 10 ईयर्स में से आप समझ लो 1 साल के लिए रेसिडेंट थे या तो रेसिडेंट ही नहीं थे. मीनिंग देयर बाय आप 10 साल में एनआरआई थे या तो 9 ईयर्स में एनआरआई थे. इन दैट केस सेकंड कंडीशन इज फेल. क्या सेकंड कंडीशन बोल रहा है, आई रिपीट. फर्स्ट कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन, यू मस्ट हैव बीन इन इंडिया, यू मस्ट हैव बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स. 7 साल का टोटल करना, वो तो सिंपल है. 7 साल का टोटल कर लो, कितने दिन इंडिया में थे, 730 डेज और मोर, देन यस इट इज सेटिस्फाइड. सेकंड कंडीशन इज सो क्रूशियल. क्या, यू मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स. लास्ट 10 साल का स्टेटस फाइंड करो, बेसिक कंडीशन अप्लाई करो हर एक साल में, एंड उसका स्टेटस फाइंड कर लो वेदर रेसिडेंट और एनआरआई. हर एक साल का स्टेटस फाइंड कर लो. बाद में चेक करो एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल में आप रेसिडेंट हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने साल में रेसिडेंट हो, 2 और मोर ईयर्स में अगर आप रेसिडेंट हो तो सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अगर 2 साल से कम अगर आप रेसिडेंट इन इंडिया हो आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, देन सेकंड कंडीशन इज वायलेटेड. यू फेल टू सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन. यस, अब दोनों चेक हो गया, सेटिस्फाइड और नॉट, दोनों चेक को कर लिया आपने. दोनों वर्किंग कर लो. किस तरह से वर्किंग करने का, लास्ट 7 ईयर्स का पहले वर्किंग कर लो, कितने दिन आप इंडिया में थे, साइड में लिख लो. फॉर एग्जाम्पल 800 डेज. सेकंड कंडीशन के लिए क्या वर्किंग करना पड़ेगा, 10 साल का स्टेटस फाइंड कर लो लास्ट 10 ईयर्स का. तो समझ लो आप 4 साल में रेसिडेंट इन इंडिया थे और 6 साल में एनआरआई थे, और बाद में दोनों एडिशनल कंडीशन एग्जामिन करो. देखो यू वेर इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर, तो यस सर हमें 800 डेज थे लास्ट 7 ईयर्स में, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकंड, यू वेर रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, तो यस सर हम 4 साल में रेसिडेंट थे, तो सेकंड इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. इफ बोथ एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यू बिकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. यस, मगर दोनों में से एक एडिशनल कंडीशन वायलेट हुआ या तो दोनों में से दोनों एडिशनल कंडीशन फेल हुआ, तो यू बिकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल टेक अ सिचुएशन, आप लास्ट 7 ईयर्स में 500 डेज इंडिया में थे, 500 डेज, एंड लास्ट 10 ईयर्स में आप समझ लो 2 साल में रेसिडेंट इन इंडिया थे. तो अब मैं चेक करूंगा तो फर्स्ट कंडीशन इज वायलेटेड बिकॉज यू वर नॉट इन इंडिया फॉर 730 डेज. अब 500 डेज ही था, तो फर्स्ट इज आउट. तो 2 में से एक कंडीशन आउट हुआ, मीनिंग बाय यू बिकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. दैट्स इट. तो 3 स्टेटस हमारे पास है वाइडर लेवल पे. इंडिविजुअल के केस में एनी ऑफ दिस 3 स्टेटस इज पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर. कौन से 3 स्टेटस है, पहले देखो हमने चार्ट कैसे बनाया था.
रेसिडेंट इन इंडिया एंड एनआरआई। तो एनआरआई तो क्लोज हो गया, तो दैट इज फाइनल स्टेटस। रेसिडेंट फाइनल नहीं हुआ। रेसिडेंट का दो पार्ट है। क्या क्या दो पार्ट है? आरओआर एंड आरएनओआर। आरओआर और आरएनओआर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो प्रैक्टिकली तीन कौन सा फाइनल हुआ? तीन। एक तो एनआरआई फाइनल हो गया एंड रेसिडेंट का दो पार्ट कर दिया, आरओआर एंड आरएनओआर। तो तीन स्टेटस हमारे पास है, एनआरआई, नंबर 2 आरओआर एंड नंबर 3 आरएनओआर। तो वी हैव 3 स्टेटस। तीन में से एक स्टेटस पॉसिबल है। नंबर 1 रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट बट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, दैट इज फर्स्ट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, आरओआर। नंबर 2 रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, आरएनओआर। एंड नंबर 3 एनआरआई। नाउ last 2 minutes. Now I'm going to define all the 3 status. देखो simple language, एकदम simple language. If you understand these words, meaning thereby you have understood my entire session, entire lecture. I am fully confident. Number 1, ROR, resident and ordinarily resident in India. Resident and ordinarily resident in India, ROR. How we can define this one? Individual satisfies at least one basic condition. तो रेसिडेंट हो गया था, at least one basic condition and both the additional condition shall be treated as ROR. I repeat, an individual who have satisfied at least one basic condition and 2 additional condition. क्योंकि एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो रेसिडेंट बन जाते हो, तो रेसिडेंट का बाद में 2 पार्ट था। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करते हो तो ROR बन जाते हो। तो मीनिंग दैट an individual who satisfies at least one basic condition and 2 additional conditions shall be regarded as ROR. Number 2, resident but not ordinarily resident in India. किस तरह से डिफाइन करेंगे? An individual who satisfies at least one basic condition but he failed to satisfy both the additional conditions. Meaning thereby he satisfy at least one basic one एडिशनल कंडीशन और दोनों में आप फेल हुआ। आई रिपीट, ROR, RNOR, सेकंड पार्ट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। एन इंडिविजुअल who satisfy at least one basic condition but he has not satisfied both the additional conditions. दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, मीनिंग thereby he failed to satisfy one additional condition or both the additional conditions. Then that individual shall be treated as resident but not ordinarily resident in India. And third, it is NRI. NRI किस तरह से होता है? दोनों बेसिक कंडीशन में फेल हुआ तो NRI बन गया। यस, तो एन इंडिविजुअल who satisfies none of the basic condition shall be regarded as NRI. NRI के लिए एडिशनल कंडीशन नहीं। बी क्लियर। An individual who satisfies none of the basic condition shall be regarded as NRI. Yes? So this were the residential status of an individual. I have given 3 clarification. तीन clarification भी माइंड में रखना है। 2 exception, 3 exception भी मैंने पढ़ाया। तीन exception। किसका exception है? I repeat, सेकंड बेसिक कंडीशन में सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंपार्टमेंट, वो 60 डेज वाला। ये 3 केसेस में it will be 182 days and in rest of the cases it will be 60 days. I hope residential status of an individual is 100% clear, and this is most important chapter because based on this chapter we will decide the final taxability of a particular individual. तो आज हमने इंडिविजुअल का ये रेसिडेंशियल स्टेटस देखा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी ऑल 6 पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। यस, इंडिविजुअल में कितने स्टेटस पॉसिबल है? मैक्सिमम जो 3 है, 3 में से कोई एक स्टेटस पॉसिबल है। बी क्लियर फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। ROR, RNOR और NRI 3 स्टेटस है। बाकी जो 6 पर्सन हम देखने के लिए जाएंगे वो एक ही सेशन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल का ही सबसे बड़ा था, क्लैरिफिकेशन इस पर चाहिए था, काफ़ी कंडीशन इन्वॉल्व थी, तो इंडिविजुअल में टाइम चाहिए था। बाकी जो 6 है वो एक सेशन में ही ख़त्म हो जाएगा। यस, तो मैं यहाँ मेरा सेशन ख़त्म कर रहा हूँ। चलो, गुड बाय, गुड डे, हैव अ सेफ डे।